Hello everybody. I am Palak Singh and I'm back with the third part of excretory product and their elimination. So in the last two videos we had covered major part of this chapter and we had covered till counter current mechanism, and in this lecture we will try to finish this chapter, and we have to start from regulation of kidney function. So without getting late, let's just start from there. So have you ever thought that what would happen if our kidney do not functions in a good way and it fails to function? What would happen then? Do we have anything in bag that we can do something if our kidney fails to function? Yeah, we have, and we have like 2 to 3 organs which would activate when our kidney fails to function. Okay, so I would tell you today about those 2 to 3 organs. Okay, so we had to start from here. Regulation of kidney function. So चलो स्टार्ट करते हैं. द फंक्शन ऑफ द किडनी is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA and to certain extent the heart. So देखो, हमारा जो किडनी है, so अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो उस वक्त क्या होता है ना कि कुछ हाइपोथैलेमस और जेजीए और कुछ एक्सटेंट तक हार्ट हमारा एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, तो तुम अब पूछोगे ये हाइपोथैलेमस क्या है और जेजीए, लेकिन मैंने तुम्हें पहले वाले लेक्चर पहले की वीडियोस में मैंने तुम्हें जेजीए के बारे में बताया है. जेजीए इज अ apparatus. The full form of JGA is juxtaglomerulus apparatus that is made from JGA is made from some, what would you tell? JGA is made from distal convoluted tubule and afferent arteriole. There is some modification in those two, like in DCT and afferent arteriole, and then we get JGA. So now you would ask me, what is hypothalamus? So hypothalamus, if you had studied brain, then you might be knowing that hypothalamus is the part of front brain. And like in front brain we have cerebrum, thalamus and hypothalamus. And hypothalamus, you would find that hypothalamus is the base of thalamus. So hypothalamus, like it functions like what? If you had studied the function of brains, and so you might be knowing that hypothalamus, what it do. So let me check in the NCERT first कि hypothalamus का function क्या है. So basically during it, let me check. So basically it controls the body temperature, urge of eating and drinking. So hypothalamus, it functions like this. Okay, but now you have to know that what is the function of hypothalamus in kidney regulation. Okay, so firstly you will highlight this. So you have to highlight like what I am highlighting. Okay, hypothalamus, JGA and heart. These 3 all together can regulate the function of kidney. Okay, so osmoreceptor in the body are activated by change in blood volume, body fluid volume and ionic concentration. So in our body we have some osmoreceptors and it gets activated if there is some change in blood volume, body fluid volume or ionic concentration. Okay, so osmoreceptor get activated during that. Okay, so an excessive loss of fluid from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus. So just imagine you had a terrible accident and you lost a lot of blood from your body. So what would happen in that situation? So your body will get the signal that you have lost a lot of blood from your body. So
in that situation your osmoreceptor gets activated and your osmoreceptor goes to hypothalamus. So hypothalamus is in our brain and it goes to our brain to the hypothalamus, and it would give signal to the hypothalamus that we have lost a lot of blood. So so hypothalamus, it release a hormone that is ADH, antidiuretic hormone. So hypothalamus will release ADH. When hypothalamus will release ADH, so it will not release ADH at any time. It will only release ADH when a lot of blood or lot of excessive loss of fluid from your body happens. In that situation only hypothalamus will release antidiuretic hormone. Or you can also, ADH is also called vasopressin, so you will get to know why it is called vasopressin in the later part. So hypothalamus will release ADH from neurophysis. So if you had not studied that chapter, that is the last chapter, chemical coordination, so you did not know about what. So we had in our brain we had hypothalamus, and just below hypothalamus we have pituitary gland, and in pituitary gland we have two division, that is what? Firstly, neurohypophysis, that is the posterior part of pituitary gland, and there is a anterior part also. So from the posterior part, that is also called neurophysis, neurophysis will release ADH or vasopressin by the stimulation of hypothalamus. Okay, so मैं एक बार हिंदी में बता रही हूँ. जैसे देखो, अगर तुम्हारी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, सो उस वक्त क्या होगा कि हाइपोथैलेमस और जेजी और हार्ट एक्टिवेट हो जाएगा. और अगर बहुत ज़्यादा तुम्हारे बॉडी ब्लड वॉल्यूम या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर आयनिक कंसंट्रेशन, ये सब अगर तुम्हारे बॉडी से अगर तुम्हारा चेंज हो रहा है, तो उस वक्त हमारे बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. सो जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया और तुम्हारा बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड लॉस हो गया, सो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस को तुरंत सिग्नल कौन देगा? ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा. जैसे तुम्हारा बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस होगा फ्लूइड का, तो फ्लूइड जैसे ही लॉस होगा वैसे ही तुम्हारे बॉडी में जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं वो एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे. वो बोलेंगे अरे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया. हमें जाके किसको बताना है? हमें जाके हाइपोथैलेमस को बताना है. और हाइपोथैलेमस कहाँ है? हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है. तो सबसे पहले ब्रेन को सिग्नल देना है कि यार बहुत ज़्यादा लॉस हो गया बॉडी में, तुम कुछ करो. ठीक है. तो हाइपोथैलेमस बोलेगा ऑस्मोरिसेप्टर से ठीक है मैं कुछ करता हूँ. और हाइपोथैलेमस क्या करेगा? वो जाके सिग्नल देगा न्यूरोफाइसिस को. न्यूरोफाइसिस इज़ द पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस जाके सिग्नल देगा कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, कुछ करो. सो तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा ठीक है मैं कुछ करता हूँ, और वो फिर तुम्हारा ADH रिलीज कर देगा. अब देखो ये ADH का काम क्या है? ADH आखिर ऐसा क्या करेगा कि तुम्हारा बॉडी लॉस, जो तुम्हारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम तुम्हारा कम हो गया है, वो उसको कैसे रोकेगा कैसे? तो वही हमको अब देखना है. सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग? So this part is very interesting. Means when I used to study for the first time, it was like terrible. It was very terrible and it was very tough for me. But when I form a kind of a story from this part, so I almost enjoyed this part a lot. So ADH facilitates water reabsorption from later part of the tubule. So ADH क्या करता है ना कि later part कौन सा है? जैसे DCT है. अब DCT में जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है. कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कब होता है? जब जैसे कि तुम्हारे बॉडी से पहले से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है फ्लूइड का, तो उस टाइम क्या होगा ना कि अब बॉडी को सोचना पड़ेगा कि नहीं, अब तो पहले से ही बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, अब हम और ज़्यादा फ्लूइड का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो उस वक्त क्या होगा कि
एडीएच जाके लेटर पार्ट, जैसे लेटर पार्ट में डीसीटी आ गया, कलेक्टिंग डक्ट आ गया नेफ्रॉन का, वहाँ पे एडीएच जाके बोलेगा कि नहीं भाई अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हमारे बॉडी से, हम और ज़्यादा तुम यूरिन या फिर और ज़्यादा तुम लॉस मत करो बॉडी से फ्लूइड का। तो वहाँ पे एडीएच जाके रीअब्जॉर्प्शन करने लगेगा जल्दी जल्दी लेटर पार्ट से। तो वही है एडीएच का, यही काम है कि एडीएच क्या करता है, एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूल, ठीक है, देयर बाय प्रिवेंट्स डायरोसिस, और इसलिए डायरोसिस को प्रिवेंट करता है। अब तुम पूछोगे ये डायरोसिस क्या है? डायरोसिस मतलब सिंपली अगर तुम्हारे बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है फ्लूइड का तो उसी प्रोसेस को डायरोसिस बोलते हैं। तो एडीएच इट जस्ट प्रिवेंट डायरोसिस, ठीक है। एन इंक्रीज इन बॉडी वॉल्यूम, body fluid volume can switch off the osmoreceptor and suppress the ADH release to complete the feedback। अगर अब देखो, अगर बॉडी फ्लूइड अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया, पहले तो क्या हुआ था कम हुआ था उसका हम बात कर रहे थे, अगर इंक्रीज कर गया बॉडी फ्लूइड तब क्या करेगा, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर को अब स्विच ऑफ बोल देगा। वो बोलेगा कि अब देखो हमारे बॉडी में बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो अब नॉर्मल आ गया है, इंक्रीज कर गया है, तो ऑस्मो रिसेप्टर को स्विच ऑफ कर देगा। और इस वक्त क्या होगा कि अब जो एडीएच का रिलीज हो रहा था तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो तुम्हारा क्या था न्यूरो हाइपोफाइसिस है, वहाँ से अब एडीएच का रिलीज़ होना बंद हो जाएगा और ये एक पूरा कंप्लीट फीडबैक देगा, ठीक है। सो मतलब ये निगेटिव फीडबैक भी दे सकता है और पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकता है। अगर बढ़ेगा फ्लूइड तो उसको घटा देगा और अगर घटाएगा तो उसको बढ़ा देगा। तो कितना अच्छा है ना, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है तुम्हें। बॉडी में अगर कम हो रहा है तो खुद ही बॉडी को पता चल रहा है, माइंड को पता चल जा रहा है। अगर बॉडी में अगर फ्लूइड बढ़ जा रहा है तो भी पता चल जा रहा है, तो ये बढ़िया है, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं रेगुलेशन। अब देखो एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। तो एडीएच हमारे किडनी फंक्शंस को कैसे रेगुलेट कर सकता है, तो इसका एक और फंक्शन है कि ये इस एडीएच का ना कॉन्स्ट्रिक्टी मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करना, मतलब ऐसे ऐसे दबा के ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। तो एडीएच किडनी का फंक्शन में ऐसे भी रेगुलेट करता है कि वो जाके ब्लड वेसल जो है, किडनी में जो ब्लड वेसल्स है उसको एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ऐसे दबा देगा। जब दबाएगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देखो उसके आगे क्या होता है। So ADH can also affect the kidney function by its constricting। तो मतलब ADH का एक कंस्ट्रिक्टरी वाला इफेक्ट भी है, ये जो ब्लड वेसल पे करता है, ठीक है। दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब तुम किसी ब्लड वेसल को जाके से दबाओगे तो उसमें उसका एरिया कम होगा तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? फोर्स बाय एरिया। तो अगर एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो अगर तुम एरिया कम कर दोगे तो प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा ना। तो कॉन्स्ट्रिक्टरी का मतलब यही होता है ना कि एरिया कम कर देना। सो एडीएच का एक और काम है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल को, एक रीअब्जॉर्प्शन करता है लेटर पार्ट से और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया उसकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो तुम्हारा फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, और फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा जीएफआर बढ़ जाएगा, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। तो मतलब ये जीएफआर को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो दो काम तुम एडीएच का देख रहे हो, हैंड टू हैंड अभी देख लेते हैं क्या है। दो फंक्शन है एडीएच का, एक तो अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा, एक तो तुम्हारा डायरोसिस रोकता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से तो वहाँ पे जाके डायरोसिस को रोक देगा, लॉस नहीं होने देगा। और दूसरा अगर तुम्हारा जो फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया है उसको बढ़ा भी देगा बॉडी में, मतलब दोनों कर सकता है ये, ठीक है। इसका दो है, एक रीअब्जॉर्प्शन भी कर सकता है और एक कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी दिखा सकता है। सो ये तो तुम्हारा फंक्शन हो गया तुम्हारा किसका, एडीएच का। सो एक बार इसको रिकैप कर दें अच्छे से। फर्स्टली अगर तुम्हारे बॉडी में बहुत ज़्यादा लॉस, चलो इसको बाद में रिकैप करेंगे, पहले जेजीए भी पढ़ ले रहे हैं और फिर इसको भी पढ़ ले रहे हैं। तो देखो जेजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। तो जेजीए भी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। पहले तो तुम जेजीए जान लो क्या है। जेजीए को हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। तो देखो अगर फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर जीएफआर कैन एक्टिवेट। अगर तुम्हारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया या फिर जीएफआर
कम हो गया, उस वक्त क्या होगा, ये एक्टिवेट कर देता है जेजी सेल। जेजी सेल तो हमने पहले भी पढ़ा है, बट यहाँ पे भी पढ़ लो कि वो उस टाइम क्या करता है ना कि एक्टिवेट कर देता है जेजी सेल को, अगर ये सब में फॉल हो गया तो, ठीक है। और जैसे ही जेजी सेल रिलीज होगा ना, जेजी सेल मैंने तो फर्स्ट पहले भी उस वाले में बताया था, जैसे ही जेजी सेल वो होगा, वो एक क्या रिलीज करेगा, रेनिन को रिलीज करेगा। अब तुम पूछोगे ये रेनिन क्या करेगा, तो रेनिन पहले तो ये वाला पार्ट तो हमने पहले ही भी देखा है कि जेजी सेल एक्टिवेट होकर रेनिन रिलीज करता है। तो अब रेनिन का फंक्शन क्या है, अब रेनिन को जानना पड़ेगा, रेनिन आखिर ऐसा क्या करता है, ठीक है। विच कन्वर्ट्स द एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1। अब हमारे ब्लड में एक एंजियोटेंसिन नाम का केमिकल है, तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को जाके कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, और फिर ये एंजियोटेंसिन 1 क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। तो फर्स्टली जेजी सेल एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर रेनिन रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा तो वो रेनिन जाके एंजियोटेंसिन विच कन्वर्ट्स रेनिन क्या करेगा ना, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, और फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। वेरी सिंपल, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। अब देखो एंजियोटेंसिन 2 एक बहुत ही पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। जैसे एडीएच कॉन्स्ट्रिक्टर था ना, कॉन्स्ट्रिक्ट करता था, ऐसे दबा देता था, तो वैसे ही जो तुम्हारा एंजियोटेंसिन 2 है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। सो इंक्रीज, तो ये क्या करता है, इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, और कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ा देगा, ठीक है। ये जाएगा और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जो कम हो गया था उसको फिर से बढ़ा देगा, एंड देयर बाई GFR, और जब बढ़ाएगा तो तुम्हारा GFR भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब दूसरा काम क्या है एंजियोटेंसिन 2 का, कि हमारा जो एड्रिनल है, मतलब हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वहाँ पे जाके एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे किडनी के ऊपर होता है, हमारे दोनों किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होता है छोटा छोटा। तुम फिगर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, मैं फिगर में दिखा दूँ एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, दिखा देती हूँ। इस वाले चैप्टर में तो नहीं दिया है, बट तुम लास्ट चैप्टर जो तुम पढ़ोगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें तुम ये जो फिगर दिया है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का, जो लास्ट में दिया हुआ है कि सारा का सारा दिखाया हुआ है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ है तुम्हारे बॉडी में सारा का सारा ग्लैंड्स। सो वहाँ पे तुम देखोगे जो तुम्हारा किडनी है ना, जो मैंने किडनी पढ़ाया है, उसके ऊपर जस्ट ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर तुम्हारा एक तुम्हारा क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। अब एड्रिनल ग्लैंड जैसे किडनी में कॉर्टेक्स था और मेडुला था ना, वैसे ही एड्रिनल ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसको एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। सो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है ना, वो जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर देता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, ठीक है। So aldosterone cause reabsorption of sodium plus and water from the distal parts of the tubule. This also leads to an increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as renin-angiotensin mechanism. So aldosterone, अब एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का और वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। सो मैंने DCT का जब तुम्हें रोल फंक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था ना कि DCT कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम का और वाटर का। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है ना कि ये जाके यही एल्डोस्टेरोन ही कराता है, जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है ना DCT से। सो ये एल्डोस्टेरोन का ही काम है, वो जाके DCT से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करा देता है। किसका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तुम्हारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है, फ्रॉम द DCT, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, फ्रॉम द DCT। दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और इसकी वजह से तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और GFR बढ़ जाता है। तो दिस कॉम्प्लेक्स, सो इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब एक लास्ट है, उसको पढ़ लेते हैं। अब देखो एन increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of atrial neurtic factor। अब देखो अगर तुम्हारा ब्लड फ्लो, जो हमारा हार्ट है, हार्ट तुमने अगर पढ़ा है तो तुम्हें पता है हमारे हार्ट में 2 डिवीज़न है, एक एट्रिया
एट्रिया, 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकुलर होता है। सो अगर तुम्हारा ब्लड फ्लो एट्रिया में बढ़ जा रहा है ना, तो उस वक्त क्या होगा कि हमारा हार्ट रिलीज करेगा एक केमिकल रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल न्यूराटिक फैक्टर, ANF, एट्रियल न्यूराटिक फैक्टर। और ANF का काम क्या है? ANF कैन कॉज वैसोडाइलेशन। सो ये देखो, ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, इसका जस्ट अपोजिट है। हमने जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि क्या, हमने पढ़ा कि जो एड्रिनल क्या था, हमने जो सबसे पहले हमने ऊपर में क्या क्या पढ़ा, एक हमने ADH पढ़ा और हमने एल्डोस्टेरोन पढ़ा और हमने एंजियोटेंसिन 2 पढ़ा। तो हमने देखा एंजियोटेंसिन 2 भी एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर था और ADH भी एक एंटीड्यूराटिक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा था, वो भी एक कॉन्स्ट्रिक्टर था। बट यहाँ पे जो ANF है जस्ट अपोजिट है, ये एक वैसोडाइलेशन है, मतलब ये डायलेशन करता है वेसल का, ऐसे वेसल को और मोटा कर देता है, तो यहाँ पे प्रेशर घट जाता है, ठीक है, एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है। सो ANF मैकेनिज्म देयर फॉर एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। सो इसलिए ये दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुम यहाँ पे एक स्टार लगा लो। So ANF therefore acts as a check on renin angiotensin mechanism। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे चेक करता है। तो पहले जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में क्या हो रहा था कि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर था और कॉन्स्ट्रिक्टर होने की वजह से वो प्रेशर को बढ़ा दे रहा था। सो मान लो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, सो उसको कम कौन करेगा? तो ये काम है तुम्हारा ANF का, ये प्रेशर को मतलब कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और क्यों डिक्रीज करता है? रीज़न यही है कि ये वैसोडाइलेशन है, ये ब्लड वेसल को जाके दबाता नहीं है और जाके उसको थोड़ा मोटा ही कर देता है, मतलब उसका डायलेशन कर देता है, ठीक है, जस्ट सिंपल। सो यहाँ पे हो गया ख़त्म। और तुम बोलोगे तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लिख के समराइज भी कर दे रही हूँ कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, ठीक है, या फिर मैं दिखा दे रही हूँ अपने बुक में कैमरा को बड़ा करके, ये भी तो ऑप्शन है। सो देखो, तुम देख रहे हो मैंने साइड में से लिखा है। सो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि हाइपोथैलेमस, जेजी और हार्ट। तो देखो, अगर चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या फिर आयनिक कंसंट्रेशन होगा, सो इसकी वजह से हमारा ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है बॉडी में। और जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, वो ऑस्मो रिसेप्टर जाके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। और हाइपोथैलेमस क्यों एक्टिवेट होता है? अगर हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया, सो उस वक्त ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा और वो जाके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा और हाइपोथैलेमस जाके ADH या फिर वैसोप्रेसिन रिलीज कर देगा। कहाँ से? न्यूरोहाइपोफाइसिस से। और देखो ADH रीअब्जॉर्ब, और ADH क्या करता है? इसका 2 काम है ADH का, तुम याद कर लो। पहला तो ये डायरेसिस को प्रिवेंट करता है, मतलब कि लेटर पार्ट से जाके वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, इसकी वजह से डायरेसिस एंटी ड्यूराटिक हार्मोन है ये, मतलब एंटी ड्यूराटिक, मतलब डायरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है एंटी ड्यूराटिक। और ADH का एक और काम है कि ये इट कैन फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट, मतलब इसका कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी होता है और इसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो तुम्हारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल GFR बढ़ जाता है, जो तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ जाता है। अब JGA का तुम देख लो, JGA में क्या होता है? देखो, अगर तुम्हारा GFR में फॉल हो गया या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो फॉल हो गया, कम हो गया, तो इस वक्त क्या होगा? तुम्हारा JG सेल एक्टिवेट होगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट होगा, वो एक्टिवेट करेगा तुम्हारा रेनिन को, और रेनिन जाके तुम्हारा क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिन एक्टिवेट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 को, और एंजियोटेंसिन 1 एक्टिवेट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 को। दिख रहा है ना? अब देखो एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम है? ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, सो ये भी कॉन्स्ट्रिक्टर है और ये क्या कर देगा? इंक्रीज ग्लोमेरुलर ब्लड
प्रेशर, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और इसकी वजह से भी इंक्रीज इन GFR हो गया, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 का एक और काम है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन को। एल्डोस्टेरॉन, अब एल्डोस्टेरॉन तुम पूछोगे इसका क्या काम है, तो एल्डोस्टेरॉन कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम DCT, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है एल्डोस्टेरॉन, और जिसकी वजह से लीड्स टू इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर और इसकी वजह से GFR बढ़ जा रहा है। तो तुम देख रहे हो हाइपोथैलेमस और जो JGA है ये क्या कर रहा है, ये GFR को बढ़ाने का काम कर रहा है। और बढ़ाने का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे एट्रियल न्यूराटिक फैक्टर जो पढ़ाया मैंने, जो ANF मैंने पढ़ाया, उसमें मैंने यही बताया कि ये एक वैसोडाइलेशन है, तो ये बढ़ाएगा नहीं, ये GFR को कम कर देगा। तो एक तरह से तुम देख रहे हो ये चेक कर रहा है, जो ऊपर का दोनों हो रहा है उस पर एक चेक कर रहा है। तो ANF ये जस्ट अपोजिट है। तो अगर तुम उधर तुम अगर बढ़ा दे रहे हो GFR को, तो ये GFR को कम कर देगा। तो एंटी न्यूराटिक फैक्टर मैकेनिज्म ऑल्सो एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। सो हो गया ये कंप्लीट। Oh my God, this is a achievement कि मैंने ये समझा दिया। एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को भी बहुत कम व्यूज़ आते हैं, 30-40 ही आते हैं। लाइक आई जस्ट नीड सम 200 to 300 व्यूज़ एक्चुअली फ्रॉम दिस इज़ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी। सो मतलब आई हैव अ पैसन टू टीच एंड currently I am also a NEET aspirant, so I don't know why I had started this channel. So basically it was a kind of escape from my life. Like I always used to get bored sometimes, so I just need something to do apart from studies. So I just thought, why do not I create a YouTube channel and I would teach some students. So yeah, so let's move to the next topic, that is micturition. I don't know how to minimize this camera, so I have a laptop, but still I do not know how to teach in laptop. So if you know, you can comment down below. So let's move to micturition. Okay, nice. So we have to study micturition and then role of other organ in excretion and then disorder. Okay, so let's finish this. Micturition. Urine formed by the nephrons is ultimately carried to the urinary bladder, where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system CNS. This signal is initiated by the stretching of the urinary bladder as it gets filled with urine. अब जैसे तुम्हारा यूरिन मान लो फॉर्म हो गया, तुम्हारा नेफ्रॉन यूरिन फॉर्म करता है, अब तुम्हारा यूरिन फॉर्म हो गया, तो अब फॉर्म होने के बाद इसको बॉडी से निकालना भी है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म होकर तुरंत निकल भी जाएगा, पहले तो ये जाके कहीं स्टोर होगा। अब तुम सोचो कि कहाँ स्टोर होगा, तो मैंने जो तुमने यूरिनरी ब्लैडर पढ़ाया था, यूरिनरी ब्लैडर मैं तुम्हें फिगर में दिखा दे रही हूँ कहाँ है। ये तुम्हें दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर है, ये देखो, ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये यहाँ पे तुम्हारा यूरिन आके स्टोर हो जाएगा और यहाँ यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाएगा, समझ रहे हो।
तो चलो पढ़ते हैं। मिक्सचुरेशन में वही है कि तुम यूरिन को कैसे निकालोगे बाहर, यही है कि मिक्सचुरेशन में मतलब देखो यूरिन को भी बाहर निकालने के लिए ना बॉडी से वहाँ भी एक सिग्नल का ज़रूरत है। वहाँ भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ही रिलीज हो जाएगा, पहले एक सिग्नल मिलेगा और तब रिलीज होगा। अब देखो यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरिन जो फॉर्म होता है अल्टीमेटली एट द एंड इट इज़ कैरीड टू वेयर, यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ कैरीड टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड टिल द वॉलेंट्री। तो वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाता है। और कब तक स्टोर होता है? जब तक कोई वॉलेंट्री सिग्नल ना मिले। वॉलेंट्री सिग्नल क्या है? एक होता है इनवॉलेंट्री और एक होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री होता है जिस पे तुम्हारा एक मतलब वॉलेंट्री मतलब तुम्हारा उस पर कंट्रोल है, और इनवॉलेंट्री होता है जिसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो वॉलेंट्री में तुम्हारा कंट्रोल है। अब तुम जैसे यूरिन है, अब तुमको कितना भी तेज़ लगा रहता है अगर लगा रहता है तुम्हें, तो तुम्हें एक कंट्रोल रहता है, नहीं भाई मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अनकंट्रोलेबल है और तुम्हें कहीं भी तुम यूरिन डिस्चार्ज कर दोगे। तुम्हारा एक कंट्रोल है यूरिन कब तुम डिस्चार्ज करना चाहते हो। तुम आधे घंटे बाद भी करना चाहते हो तो यू हैव दैट कंट्रोल, तो दैट इज़ कॉल्ड वॉलेंट्री। सो जब तक एक वॉलेंट्री सिग्नल ना मिले माइंड को तब तक यूरिन उसी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो वॉलेंट्री सिग्नल इज़ गिवन बाय द सेंट्रल, और ये वॉलेंट्री सिग्नल मिलता है तुम्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सीएनएस से। तो दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और जैसे ही ये सिग्नल होता है ना, मिलता है, तो यूरिनरी ब्लैडर का यहाँ पे स्ट्रेचिंग होने लगता है, ऐसे स्ट्रेचिंग होता है एंड इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन। और यहाँ पे पूरा का पूरा यूरिन यहाँ पे फिल हो जाता है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस। और जैसे ही स्ट्रेच होता है ना, तो उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, और वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं? सिग्नल भेज देते हैं। किसको भेजते हैं? सीएनएस को, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस भेजते हैं, रिस्पॉन्स भेजते हैं। और सीएनएस पासिस ऑन मोटर मैसेज, और सीएनएस क्या करता है? मोटर मैसेज को पास करता है, ठीक है, टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड स्टिमुलेट्स रिलैक्सेशन to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine। तो जैसे ही CNS को मिलता है ना, मतलब सिग्नल जैसे ही मिलता है, वो क्या करता है ना कि एक मोटर न्यूरॉन को भेजता है। तो मोटर न्यूरॉन जैसे ही आता है ना, वो क्या करता है कि जैसे हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर उसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ मसल है, तो वो आके कंट्रैक्शन करता है, स्मूथ मसल को ऐसे ऐसे दबाने लगता है। अब स्मूथ मसल को जैसे ही दबाता है ना, तो क्या होता है कि एक साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल, तो यूरेथ्रल स्फिंक्टर का एक उसी वक्त एक रिलैक्सेशन भी होता है साथ साथ, कॉजिंग द रिलीज ऑफ, और इस वजह से क्या होता है? रिलीज हो जाता है, यूरिन का रिलीज हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन। तो ये जो प्रोसेस है यूरिन रिलीज करने का, इसी प्रोसेस को हम लोग द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन, ठीक है। एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। और ये जो पूरा न्यूरल मैकेनिज्म हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज 1 to 1.5। अब तुम पूछोगे कि हम कितना यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, तो अगर तुम एक एवरेज मतलब देखो तो 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन तुम एक दिन में डिस्चार्ज करते हो, अगर हेल्दी इंडिविजुअल है तो, पर डे। द यूरिन फॉर्म्ड इज़ अ लाइट येलो कलर, और जो यूरिन हमारा होता है वो एक लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड है विच इज़ स्लाइटली एसिडिक, और वो एसिडिक है जिसका pH 6.0 है, एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर, और एक गंदा सा मतलब ओडर भी है उसका। सो ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया। तो अब यूरिन में तो यूरिया ही होगा ना, हम तो यूरिया ही हम अमोनिया तो करते नहीं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें, अब तुम ये मत भूल जाना, अब सारा जैसे बोलते हैं ना पूरा रामायण पढ़ लिए और लास्ट में पूछ रहे हैं राम कौन है, तो ये मत कर देना कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि ऑन एन एवरेज, अगर तुम्हें सेंटेंस में बना के दे दे कि ऐसे ऑन एन एवरेज देयर इज़ 25 to 30 ग्राम ऑफ अमोनिया इन आवर यूरिन, तो तुम तुरंत गलत कर देना। हमारा बॉडी अमोनिया और यूरिक एसिड कभी भी फॉर्म नहीं करता है। देखो हाँ, अमोनिया फॉर्म करता है, लेकिन अमोनिया
लीवर में जाके वो चेंज हो जाता है यूरिया में। तो हम अगर तुम अपना यूरिन देखो तो उसमें 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया होता है पर डे, इतना हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। सो वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। अब बहुत सारा कंडीशन है जिसकी वजह से तुम्हारा यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है। या तो तुम्हारा देखो जनरली लाइट येलो कलर का हो सकता है कभी रेड हो जाए तुम्हारा यूरिन, कभी वाइट हो जाए, या फिर उसका ओडर बदल सकता है, जो उसका स्मेल है वो बदल सकता है। तो वो सब बहुत सारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। और देखो एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। अब यूरिन का एनालिसिस करके ना तुम जाते होगे हॉस्पिटल में, तो तुम हॉस्पिटल में दो चीज़ का ही तो चेकअप ज़्यादातर तुम सुनते होगे कि अपना यूरिन टेस्ट करा लो और ब्लड टेस्ट करा लो। तो यूरिन टेस्ट हम क्यों कराते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का तुम्हें पता चल सकता है तुम अपना यूरिन टेस्ट करा के। क्योंकि देखो जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट ही यूरिया होता है। सो वही तुम्हारा यूरिन में आ रहा है। तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यूरिया, उसके थ्रू तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हें कौन सा बीमारी है, क्या है क्या नहीं है। तो तुम्हारा यूरिन टेस्ट की वजह से पता चल जाता है। सो यही लिखा है यहाँ पे कि एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। बहुत सारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को तुम पता कर सकते हो, एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। अगर तुम्हारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ गया तो वो तुम यूरिन टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हो कि तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ गया है। सो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोयूरिया। तो तुम जस्ट ग्लाइकोयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ गया है तो ग्लाइकोयूरिया, और अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बढ़ गया है तो कीटोयूरिया। समझ गए? कीटोयूरिया या फिर ग्लाइकोयूरिया इन यूरिन। और ये एक इंडिकेटिव है डायबिटीज़ का, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो किसी को पता करना है तुम्हें डायबिटीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तुम कैसे पता लगा पाओगे? तुम जाओगे हॉस्पिटल में ना, तो वहाँ पे सबसे पहले तुमको बोलेंगे कि अपना यूरिन टेस्ट कराइए। अब तुम्हारा यूरिन टेस्ट होगा तो अब तुम इसके पीछे का राज जो होता है, इसके पीछे का सीक्रेट जान गए कि यूरिन टेस्ट में क्या होता है ना, कि अगर तुम्हारे यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है या फिर कीटोन बॉडीज़ का लेवल बढ़ गया है। सो ग्लूकोज का बढ़ गया है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोयूरिया, और कीटोन का बढ़ गया है सो उसको बोलेंगे कीटोयूरिया। तो अगर ये दोनों बढ़ा है ना, तो ये इंडिकेट करता है कि तुमको डायबिटीज़ हो गया है, मतलब तुमको शुगर का बीमारी हो गया है, तो डायबिटीज़ हो गया है। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और अभी भी 2 टॉपिक बच रहा है, सो उसको भी अब नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ ना कि 1-1 घंटे का लेक्चर बनाने से कोई वो नहीं है, क्योंकि उसको अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है। सो आई जस्ट थॉट कि मैं 25 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ और एक टॉपिक 2 टॉपिक को बढ़ाऊँ, और एक ऐसे सीरीज़ बना दूँ, बहुत मतलब ऐसे एनसीईआरटी का सीरीज़ बना दूँ। क्योंकि एनसीईआरटी भी मतलब अगर तुम मेरे 2 वीडियो पहले का भी देखे होगे और ये भी अगर तुम देख रहे हो, तो यू माइट बी नोइंग कि आई एम not just reading the sentences of NCERT, I am elaborating it. So yeah, that's all for today, and we will finish the next 2 parts, that is role of other organs in excretion and the disorders of the excretory system. So we will finish that in the next video. So yeah, that is all for today, and also please do hit the like button and comment and share this video as much as you can if you are enjoying this series. So yeah, I will see you in the next video. तब तक के लिए पढ़ते रहो। टाटा, बाय बाय।